کوفہ اور مکہ کے واقعات کے بعد تاریخ اسلام کے اس دور میں ایک نیا باب کھلتا ہے جس میں فتنوں، سیاسی چالوں اور اقتدار کی کشمکش نے دینی جذبے کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں کو بھی آشکار کیا۔ مختار سقفی کی شخصیت اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اس کی حرکات و اقوال نے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ کچھ لوگ اسے انتقام حسین علیہ السلام کا دعویدار سمجھتے رہے تو بعض نے اس کے عزائم میں دنیاوی اقتدار کی خواہش دیکھی۔ اسی پس منظر میں وہ واقعات رونما ہوئے جنہوں نے نہ صرف عراق بلکہ حجاز مقدس تک کو متاثر کیا۔ جب عبداللہ بن سبا نے ایک ایسا ناپسندیدہ مسلک قائم کیا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ اور نیک لوگوں کی بے ادبی کو عبادت کا حصہ سمجھا جانے لگا تو مسلمانوں میں فطری طور پر اس گروہ کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اس مخالفت کے بعد ابن سبا کے پیروکاروں نے اپنے مسلک کو محبت علی کے لبادے میں چھپانا شروع کر دیا۔ یوں یہ جماعت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک شدت پسند یعنی غالی اور دوسرے نسبتاً معتدل۔ مختار کے دور حکومت تک کوفہ میں دونوں گروہ موجود تھے اور شدت پسند عناصر کو مختار کی سرپرستی حاصل ہونے کے باعث ان کے نظریات میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ علامہ طبری کے بیان کے مطابق اس زمانے میں کوفہ میں دو عورتیں ہند بنت مخلفہ اور لیلہ بنت قمامہ ایسی تھیں جن کے گھروں میں یہ شدت پسند لوگ جمع ہو کر اپنے معاملات پر بات چیت کرتے تھے۔ لیلہ کا بھائی رفاع بن قمامہ خود اس نظریے کا حامی نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کی بہن اس سے ناخوش رہتی تھی۔ جب ابو عبداللہ جدلی اور یزید بن شراحیل نے ان حالات کو دیکھا تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں موجود حضرت محمد بن حنفیہ کو ایک خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے اور ان کی والدہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی نسبت سے وہ ابن حنفیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے یزید بن شراحیل کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام ایک نصیحت آمیز خط بھیجا جس میں ارشاد فرمایا، یہ خط محمد بن علی کی جانب سے ان لوگوں کے نام ہے جو کوفہ میں رہتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ مسجدوں اور مجالس میں جمع ہو کر علانیہ اور خفیہ طور پر اللہ کو یاد کرو، ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا رہنما نہ بناؤ اور جھوٹے دعوے کرنے والوں سے دور رہو، نماز اور روزے کی پابندی کرو اور یقین رکھو کہ مخلوق میں کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے اس خط میں اشارتاً مختار کے غلط دعووں سے بھی خبردار کیا اور اہل کوفہ کو ان کے اثر سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مسلسل یہ خبریں پہنچنے لگیں کہ مختار دین اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور اس کی سرگرمیوں سے فتنہ اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے خود عراق جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ حالات کا قریب سے جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری جانب جب مختار کو یہ خبر ملی کہ حضرت محمد بن حنفیہ عراق آنے والے ہیں تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر ابن حنفیہ کوفہ پہنچ گئے تو وہ تمام لوگ جو اس کے اثر میں آ چکے ہیں ان سے الگ ہو جائیں گے اور اس کی حکومت اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر مختار نے ایک حیران کن تدبیر اختیار کی۔ اس نے عوام کے سامنے علانیہ کہنا شروع کیا، ہم مہدی کی بیعت پر قائم ہیں، لیکن سچے مہدی کی ایک نشانی ہوتی ہے، جو شخص اس علامت کا حامل ہو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حقیقی مہدی ہوگا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ علامت کیا ہے تو مختار نے کہا کہ اس شخص پر تلوار کا وار کیا جائے، اگر تلوار اسے نقصان نہ پہنچا سکے تو وہی مہدی ہے۔ جب یہ بات حضرت محمد بن حنفیہ کے علم میں پہنچی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ مختار کا یہ طریقہ دراصل آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے عراق جانے کا ارادہ ترک فرما دیا تاکہ خود کو ممکنہ سازش سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ ماخذ کتاب الفرق بین الفرق صفحہ نمبر 33 ہے۔ جب ابن زیاد نے مختار کی آنکھ زخمی کر کے اسے کوفہ سے نکل جانے پر مجبور کیا تو مختار مکہ مکرمہ چلا گیا۔ وہاں اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی طرف سے اس شامی لشکر کا مقابلہ کیا جو یزید بن معاویہ نے حسین بن نمیر سکونی کی قیادت میں مکہ معظمہ بھیجا تھا۔ یہ لشکر یزید کی وفات کے بعد محاصرہ ختم کر کے واپس دمشق چلا گیا۔ اگرچہ مختار نے بظاہر عبداللہ بن زبیر کی اطاعت قبول کی تھی، مگر جلد ہی اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ کوفہ واپس آیا اور عبداللہ بن زبیر کے مقرر کردہ گورنر عبداللہ بن متی کو نکال کر کوفہ کی حکومت خود سنبھال لی۔ جب مختار نے کوفہ میں اپنا اقتدار مضبوط کر لیا
तो उसने अपने जुबैर को एक खत लिखा कि अगर आप मुझे 10 लाख दिरहम अता फरमाएं तो मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान पर हमला करके आपको शाम की जंगी मुसीबतों से निजात दिला दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यह सुनकर फरमाया, सकीफ का ये चालाक आदमी आखिर कब तक मेरे साथ धोखेबाजी करता रहेगा। जब यह चाल नाकाम हुई तो मुख्तार ने एक और मंसूबा बनाया ताकि चालाकी के जरिए हिजाज पर कब्जा हासिल कर सके। यजीद की मौत के बाद शाम में मरवान बिन हकम की हुकूमत कायम हो गई थी। मरवान की वफात के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्ते हुकूमत पर बैठा। अब्दुल मलिक ने इरादा किया कि मक्का मुआज़मा की तस्खीर का वो काम जो यजीद की मौत से रुका हुआ था अब मुकम्मल किया जाए। इस मकसद के लिए उसने एक बड़ा लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुकाबले पर रवाना किया, जो तवील अरसे तक वादी अल क़ुरा में क़याम वज़ीर रहा। ये हालात देखकर मुख्तार ने बड़ी अकीदत और खैरख्वाही का इजहार करते हुए हजरत इब्ने जुबैर को लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान आपके खिलाफ लश्कर कशी की तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए अपनी फौज रवाना कर सकता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब में फरमाया, अगर तुम वाकई मेरी इताअत में हो तो कूफा में लोगों से मेरी बैयत लो और मेरी मदद के लिए अपनी फौज वादी अल क़ुरा में रवाना करो ताकि वो दुश्मन के मुकाबले में लड़ सके। यह खत पाते ही मुख्तार ने शर्जील बिन वर्स हमदानी को 3000 फौजियों के साथ मदीना की तरफ रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वहां पहुंचकर मजीद हदायत का इंतजार करे। असल में मुख्तार की नीयत कुछ और थी। वो चाहता था कि यह फौज मदीना पर कब्जा कर ले, फिर कूफा से अपना नुमाइंदा वहां हाकिम मुकर्रर करे और बाद अज़ां शर्जील अपनी फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करे ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर को घेर लिया जाए। शर्जील 3000 फौज के साथ मदीना रवाना हुआ। यह खबर जब इब्ने जुबैर को मिली तो वो फिक्रमंद हुए कि कहीं मुख्तार ने कोई नया फरेब न किया हो। लिहाजा उन्होंने अब्बास बिन सहल बिन साद को 2000 सिपाहियों के साथ मदीना भेजा ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। जब अब्बास मदीना के करीब पहुंचे तो देखा कि मुख्तार की फौज भी वहीं आ पहुंची है। शर्जील ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, मैमना और मैसरा मजबूत किए और पानी के चश्मे पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अब्बास की फौज अभी मुंतशिर हालत में थी और जंगी सफबंदी नहीं कर पाई थी। रकीम के मकाम पर अब्बास और शर्जील की मुलाकात हुई। अब्बास ने कहा, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। दोनों अलग हो गए। अब्बास ने पूछा, क्या तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर की इताअत में हो? शर्जील ने जवाब दिया, हाँ मैं उनकी इताअत में हूं। अब्बास ने कहा, तो फिर वादी अल क़ुरा में हमारे दुश्मन के मुकाबले पर हमारे साथ चलो। शर्जील ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ ये कहा गया है कि मदीना पहुंचकर क़याम करूं और मजीद हदायत का इंतजार करूं। अब्बास ने नरमी से कहा, अगर तुम वाकई इब्ने जुबैर के ताबे हो तो मैं उनकी जानिब से हुक्म लाया हूं कि तुम अपनी फौज समेत मेरे साथ वादी अल क़ुरा चलो। शर्जील ने इनकार करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इताअत का हुक्म नहीं दिया गया। अब्बास को उस वक्त यकीन हो गया कि शर्जील के इरादे दुरुस्त नहीं, मगर उसने अपनी चाल जाहिर नहीं की। इख्तिताम गुफ्तगू पर अब्बास ने कहा, अच्छा जो तुम मुनासिब समझो करो, मैं जल्द ही वादी अल क़ुरा को रवाना हो जाऊंगा। बादज़ा अब्बास ने पानी के करीब क़याम किया और शर्जील के लिए तोहफे भेजे, आटा, गोश्त और कुछ कीमती अशिया। उस वक्त शर्जील के लश्कर के पास रसद खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये ज़ियाफ़त कबूल कर ली। फौज खाने पकाने और पानी लाने में मसरूफ़ हो गई और उनकी जंगी तरतीब बिखर गई। अब्बास ने मौका देखकर अपनी फौज में से 1000 बहादुर सिपाही मुंतखब किए और शर्जील के कैंप पर अचानक हमला कर दिया। शर्जील ने खतरा महसूस करके अपनी फौज को पुकारा, मगर अभी 100 सिपाही भी जमा ना हो पाए थे कि अब्बास का लश्कर पहुंच गया। शर्जील चीखने लगा, ए हिज़्बुल्लाह, आओ और इन जालिमों से लड़ो जो शैतान के पैरोकार हैं। लेकिन उसकी आवाज़ बेअसर रही। अब्बास अपने 1000 जानबाजों के साथ टूट पड़ा। शर्जील अपने 70 साथियों समेत मारा गया। अब्बास की फौज ने बाकी इराकी लश्कर को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। 3000 में से सिर्फ 200 सिपाही जिंदा बचे जो भागकर इराक की तरफ निकल गए, मगर उनमें से ज़्यादातर रास्ते में मारे गए। जब यह खबर मुख्तार तक पहुंची तो वो कहने लगा, इन नाफरमान फाजरों ने खुदा के बरगुज़ीदा बंदों को कत्ल कर दिया, मगर यह सब तकदीर इलाही थी जो पूरी हुई। तारीख़ इब्न जरीर तबरी जल्द 7 सफ़हात 135 और 136 माखूज़ बख्तिसार। मुख्तार के मरने के बाद उसके पैरोकारों ने एक मुस्तकिल जमात कायम की जो कैसानिया के नाम से मशहूर हुई। कैसानिया की वजह तस्मिया के बारे में मौरखीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ मौरखीन के मुताबिक खुद मुख्तार का असल नाम कैसान था। दूसरों का कहना है कि कैसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक ग़ुलाम का नाम था, जिसने मुख्तार को इस वक्त रहनुमाई दी जब वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों से बदला लेने में सरगर्म था। इसी निस्बत से मुख्तार के मानने वालों को कैसानिया कहा जाने लगा।
बाद में कैसानिया मुख्तलिफ शाखों में बट गए, मगर दो बुनियादी अकायद पर सब मुत्तफिक थे। मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम मानना, और जो शख्स अल्लाह ताला के लिए इब्तदाई इताअत और तस्लीम का कायल ना हो उसे गुमराह समझना। मुख्तार भी अपनी दावत में लोगों को मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत की तरफ बुलाता था। कैसानिया के अंदर ये इख्तिलाफ भी पाया जाता था कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत का आगाज़ कब हुआ। बाज़ के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मोहम्मद बिन हनफिया ही इमाम बने। वो ये दलील देते थे कि जंग जमल में हज़रत अली का अलम यानी परचम उन्हीं के हाथ में था। दूसरे गुरूह का ख्याल था कि हज़रत अली के बाद पहले हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम बने, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार करके मदीना से मक्का रवाना हुए तो उन्होंने इमामत अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के सुपुर्द की। कैसानिया की कई शाखें वजूद में आईं। उनमें से एक अहम शाख करीबिया थी, जो अबू करब ज़रीर के पैरोकार थे। इस ग्रोह का अकीदा था कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया जिंदा हैं, उन पर मौत तारी नहीं हुई और वो इस वक्त जबल रज़वी में मौजूद हैं। उनके मुतालिक उनका ये अकीदा है कि उनके सामने दो चश्मे बहते हैं, एक पानी का, दूसरा शहद का। वो इन्हीं चश्मों से रिज़्क़ हासिल करते हैं। उनके दाईं तरफ एक शेर और बाईं तरफ एक चीता पहरा दे रहे हैं। ये दोनों जानवर उनकी हिफाजत करते रहेंगे यहाँ तक कि उन्हें ज़हूर और खुरूज का हुक्म मिले। करीबिया के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ही महदी मौऊद हैं। बाज़ दूसरे कैसानियों का अकीदा था कि मोहम्मद बिन हनफिया वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनके बाद इमामत किसको मिली इस बारे में वो खुद इख्तिलाफ रखते थे। कुछ के नज़दीक उनके बाद अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुए, जबकि दूसरे कहते हैं कि इमामत मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे अबू हाशिम अब्दुल्ला को मिली। एक और ग्रूह जिसे रावंदिया कहा जाता है, ये अकीदा रखता था कि अबू हाशिम ने अपनी वसीयत के मुताबिक इमामत मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को मुंतकिल कर दी। अल-फ़र्क़ बैनुल फ़िरक़ सफ़ात 27 से 28। मुख्तार का इल्हामी कलाम। चूँकि मुख्तार के हालात और रवायात बहुत तवील हैं, इसलिए यहाँ इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया जाता है कि मुख्तार ने अपने कुछ अक़वाल को इल्हामी कलाम करार दिया और उसे कुरान के मुशाबह पेश किया। जो हज़रात इसके इन अक़वाल और दावों की तफसील जानना चाहते हैं वो दर्ज झैल कुतुब से रुजू कर सकते हैं। अल-फ़र्क़ बैनुल फ़िरक़ अज़ अल्लामा अब्दुल क़ाहिर सफ़ात 34 से 35, किताबुद्दुआत सफ़ात 64 से 65। जब तारीख़ के तूफ़ानों ने कूफ़ा व मक्का के उफ़क़ को धुंधला दिया, तब भी हरम की हुर्मत अपनी जगह कायम रही। सियासत, इख्तिदार और इख्तिलाफ के शोर में वही दिल रोशन रहे जो पासबाने हरम बनकर दीन की असल रूह से जुड़े रहे। ये क़िस्त यहाँ इख्तिताम को पहुँचती है, मगर सफ़र अभी बाकी है। अगली क़िस्त में हम वक्त के नए मोड़ देखेंगे जहाँ अक़ीदा, क़यादत और इख्तिदार एक बार फिर आमने सामने होंगे। ये थी पासबाने हरम की दूसरी क़िस्त। अगली क़िस्त में तारीख़ के अगले बाब से पर्दा उठाया जाएगा।